ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗೃತದಿಂದ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸಯ್ಯ. ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಆಂಟಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸಯ್ಯ. ಈ ದಿನವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಯ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಾರ್ದೆ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ತಿರಂತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಸೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೇವ್ರಿ, ಆಮೇನ್. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಹಾಡೆ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುನಿಪೈ. ಈ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ತು ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము. అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము. నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని లిల్లీ పుష్పం శారను రోజా పరిశుద్ధమైన మాదు తండ్రి. లిల్లీ పుష్పం శారను రోజా పరిశుద్ధమైన మాదు తండ్రి. పూర్ణరూప సౌందర్యుడి కీర్తింపతగిన దేవా. పూర్ణరూప సౌందర్యుడి కీర్తింపతగిన దేవా. నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము. అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము. నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని భక్తులు ప్రేమించు దేవా నా ప్రభునామము పరిమళమే. భక్తులు ప్రేమించు దేవా నా ప్రభునామము పరిమళమే. యేసుని వెనుక వచ్చితిని నన్ను ఆకర్షించెను. యేసుని వెనుక వచ్చితిని నన్ను ఆకర్షించెను. నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము. అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము. నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని నిద్రించు రాత్రి సమయమునందు నిత్యము నా ఆత్మ మేలుకొని. నిద్రించు రాత్రి సమయమునందు నిత్యము నా ఆత్మ మేలుకొని. నా తలుపు నొక్క నిలచిన యేసుని ప్రేమించెదన్. నా తలుపు నొక్క నిలచిన
యేసుని ప్రేమించెదను, నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము, అరణ్య మార్గమున నడచుటై ఆనంద జీవితము, నా ప్రియ యేసునిపై ఆనుకుని. ನಾವೀಗ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. आज की सेवा के लिए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। लूक सुसमाचार 10 चैप्टर वर्स 38 to 42 मिलके पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो ये गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। प्रार्थना करेंगे। महान प्रेम अनुग्रहकारी विश्वास योग्य प्रभु, आपके पवित्र चरणों के पास हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आकर झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन में आपके अनुग्रह से आपने हमको जीवित रहते हुए आपके सन्मुख आने का भाग्य दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अपरंपार प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने मुझसे किया, हमसे किया और ठीक समय पर इस संसार में से प्रभु आपने मसीह यीशु में चुना, उद्धार, पापों की क्षमा देकर पवित्र प्रभु जी आज के जीवन तक प्रभु आपकी कृपा देकर चलाते हुए आए हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र प्रभु जी, सच में देखा जाए तो कोई योग्यता प्रभु जी हमारे जीवन में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि प्रभु जी आपके दृष्टि में, संसार के दृष्टि में भी प्रभु जी मैं तो नीच और पापी, पवित्र प्रभु जी अज्ञानी, फिर भी मसीह यीशु में आपने मुझे चुन लिया। हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो बहनों की संगति में पवित्र प्रभु जी हो रहे बहनों के साथ मुझे भी आपके चरणों के पास इकट्ठा किया है। हृदय से आभारी है, धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र चरणों के पास आए हुए हैं प्रभु जी, आप मुझ पर दया कीजिए। अयोग्य दासी हूँ प्रभु, मेरे सारी अयोग्यता को, मेरे बलहीनता को आपके क्रूस के पीछे छिपा लीजिए और प्रभु जी आपके क्रूस के ऊपर बहाए हुए लहू के द्वारा आप मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए। आपकी ओर से प्रभु आप मुझे वचन दीजिए और प्यार पिताजी प्रार्थना करती हूँ राजा, आप ही मेरे बोलने वाले हर एक शब्द में पवित्र प्रभु जी लूक 12:12 वचन के अनुसार अगुवाई कीजिए, दया कीजिए। प्यार पिताजी वचन को अपने अपने भाषा में समझने के लिए आपके आत्मा के कार्य को प्रभु आप कीजिए, दया कीजिए। प्रभु जी इस वचन को मैं अपने आप को आपके दयालु सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के इस पढ़े गए भाग में हम देखते हैं कि मरियम के बारे में आज देखेंगे। मरियम के विषय में प्रभु का वचन बोलता है कि परंतु ये 42 में, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। मतलब मरियम ने एक अच्छा भाग चुन लिया। प्रभु का वचन बोलता है और ये आवश्यक है, मतलब वो बहुत ही जरूरी है जो मरियम ने जो भाग उसने चुन लिया है, और प्रभु का वचन बोलता है उसको छीना नहीं जाएगा। मतलब मरियम ने अपने जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भाग को उसने चुन लिया है। वो क्या है? मतलब प्रभु को उसने चुन लिया, प्रभु के चरणों को उसने चुन लिया। 39 में लिखा है, मरियम नामक
उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनती थी। तो मरियम के बारे में हम देखते हैं, मरियम क्या कर रहे हैं, प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुन रही है। यहाँ पर एक परिवार है, मार्था है, मरियम है और लाजर, तीनों ये बेतनिया गांव में रहने वाले हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत बार इस बेतनिया गांव को गए और प्रभु यीशु मसीह परिवार से प्रेम भी करते थे। तो यहाँ पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि मरियम ने क्या है, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह गए होंगे, परंतु एक बात लिखा है, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। सुन रही थी बोल के नहीं, एक वचन के लिए नहीं, मतलब जब भी प्रभु यीशु मसीह उस गांव में उनके घर में जाते थे, मरियम क्या कर रहे, मतलब प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुनते थे। मतलब पवित्र प्रभु के चरणों के पास बैठना मतलब अपने आप को दीन नहीं करना। कोई भी साथ में बैठने के लिए खुश रहते हैं, नीचे बैठना किसी को भी पसंद नहीं आता है। परंतु हम देखते हैं प्रभु के चरण मतलब क्या है, यशायाह 66 चैप्टर, यशायाह 66 चैप्टर वर्स 1, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मतलब आकाश परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के पांव रखने की जगह है। मतलब प्रभु के जहां पर भी, इस पृथ्वी पर जहां पर भी हम प्रभु के जहां पर भी हम प्रभु के नाम से घुटना टेकते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। जहां पर भी प्रभु के नाम से हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति है, वहां पर प्रभु के चरण है, प्रभु के पांव है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की जगह है। हम कहीं पर भी हो, कौन से गांव में हो, कई स्थान में भी हो, जब भी हम प्रभु के चरणों के पास आते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति रहती है। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है और प्रभु के पांव भी इतने बड़े। हम चाहे बीदर में हो, चाहे हुमनाबाद में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जहां पर भी हम अकेले हो और कैसे भी हो, जब प्रभु के चरणों के पास हम बैठते हैं तो क्या है, वहां पर प्रभु के पांव रहते हैं, प्रभु के चरण रहते हैं। इसलिए लिखा है कि मरियम ने उस उत्तम भाव को चुन लिया। मरियम ने क्या उत्तम भाव को चुन लिया, मतलब प्रभु के चरणों के पास बैठना, उसके वचन को सुनना। मरियम मार्था क्या करे, मतलब भौतिक बातों के चिंता में है, भौतिक बातों के विषय में वो इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं। परंतु मरियम ने क्या चुन लिया, मतलब प्रभु के चरणों के पास बैठना, वचन को सुनना। इन दिनों में भी देखते हैं बहुत लोग, बहुत सारे फंक्शन में रहो, घर में रहो, बहुत लोगों को बाहर के बातों में, खाना बनाना हो, बाहर के विषय में बहुत भाग दौड़ करते हैं, परंतु प्रभु के चरणों के पास समय देने के लिए उनको बहुत बहने भी ऐसे काम में बिजी रहते हैं, परंतु प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए उनको बहुत थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो मरियम, प्रभु के वचन में लिखा है, मरियम ने उस उत्तम भाव को चुन लिया। मरियम ने क्या चुन लिया, मतलब प्रभु के पांव के पास बैठना, प्रभु के वचन को सुनना। और प्रभु के वचन को सुनकर वो क्या करते हैं, मन में प्रभु के वचन को सुनना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे वचन को सुनते हैं। प्रभु का वचन बोलता है, जिसके कान हो वह सुने। मतलब हर एक को कान रहते हैं, हर एक सुनते हैं, परंतु जो सुने हैं अगर हम उसके हृदय में रख रहे और वचन के अनुसार चल रहे, तो वो कान का फायदा है, नहीं तो कितना सुने तो भी कुछ फायदा नहीं है। तो मरियम ने क्या चुन लिया, मतलब अपने जीवन में प्रभु के चरण को उसने अपने जीवन में चुना। प्रभु के चरणों के पास बैठना कितना महत्वपूर्ण है। हम कितना प्रभु के चरणों के पास बैठकर कितना प्रभु के साथ समय बिताते हैं, कितना प्रभु का वचन सुनते हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना वचन को अपने हृदय में रख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वचन को सुनना
और वचन को अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार। क्यों? जो वचन हम सुनते हैं, एक बार अपने हृदय में रख लिया तो उसको कोई भी निकाल नहीं सकता है, वो कोई भी उससे निकाल नहीं सकता है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया, उससे कोई भी छीन नहीं सकता। मतलब मरियम ने क्या चुना? प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के चरणों के पास बैठना। तो आप और मैं भी क्या करना है? मतलब प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रभु का वचन सुनना। वचन सुनकर क्या करना है? वचन को अपने हृदय में लेना। प्रभु क्या मेरे लिए क्या बोलता है, प्रभु की इच्छा मेरे विषय में क्या है, प्रभु आज के दिन के लिए मुझे क्या कहना चाहता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, वचन सुनने से हमारा क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। रोमन्स में लिखा है, रोमन्स 9 chapter verse 17। अतः वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना, विश्वास कैसे? सुनने से। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। मतलब जितना हम प्रभु का वचन सुनते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, उतना क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु के वचन को सुनना है। प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु के वचन लूका सुवार्ता में, लूका सुसमाचार 8 अध्याय, लूका सुसमाचार 8 अध्याय और 15 वर्ष। पर अच्छे भूमि में के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से पढ़ लाते हैं। तो मतलब वचन को सुनकर क्या करना है? अपने हृदय में, अपने उत्तम मन में संभाले रहना। मतलब वचन को सुनना, अपने हृदय में उस वचन को संभाल के रखना। क्यों? एक वचन क्या है, हम जब वचन को ध्यान से सुनते हैं और वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। वचन सुन रहे, अगर वचन हृदय में ही नहीं जा रहा है, वचन के अनुसार हम वचन हमारे जीवन में सुन रहे परंतु वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वचन याद ही नहीं रह रहा है बोलने से, वो हमारा जीवन फलवंत, हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं। एक बार वचन सुना, बस वचन को सुनकर चले गए, फिर घर में जाने के बाद भूल गए, वचन लिख के रखे और वो नोटबुक में है, कुछ फायदा नहीं है। वचन को सुनना और वचन को, हिंदी में लिखा है, वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। वचन को अपने हृदय में संभाल कर रखना, वचन को अपने हृदय में रखना है। क्यों? जो वचन हम हृदय में रखते हैं उस किसी को भी निकालने के लिए नहीं आता। जितना हो सके हम वचन को अपने हृदय में रखना है। क्यों? आने वाले दिनों में अगर वचन का अकाल पड़ेगा, वचन नहीं रहेगा, परंतु जब हम यही समय है कि हम अपने प्रभु के वचन को अपने हृदय में, वो कोई किसी को भी निकालने के लिए नहीं आता है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि मरियम क्या करती थी? मतलब प्रभु के चरणों के पास बैठकर वचन को सुनती थी। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, वर्ष 18 में लिखा है, लूका सुसमाचार 8 अध्याय का 18 वचन, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुन। हम कैसा वचन सुन रहे? वचन सुन रहे, परंतु वचन सुनने में क्या है? फर्क रहता है। केवल कुछ लोग सिर्फ ऐसा ही देखते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो ध्यान से सुन रहे, परंतु उनका मन क्या है? इधर उधर रहता है, उनका वचन हृदय में नहीं जाता है। तो हम हमारे जीवन में मरियम के बारे में सीखने का पाठ है, मतलब वचन को हम प्रभु के चरणों के पास बैठकर, विनम्र होकर हम प्रभु के चरणों के पास क्या है? बैठना। प्रभु के चरणों के पास बैठकर, प्रभु मुझे क्या कहता है आज दिन के लिए, प्रभु की मेरे विषय में क्या इच्छा है, प्रभु क्या कहना चाहता है, वो क्या है? प्रभु के वचन में से हम देखना है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है यशायाह में, हम प्रभु के वचन को कैसा सुनना है, कैसा लेना है? यशायाह
chapter. यशायाह 50 chapter verse 4. प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुन। हम कैसे प्रभु के चरणों के पास कैसे शिष्य के समान बैठना, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, हम शिष्य है। कैसे प्रभु हमारा यजमान है, हम उसके दास हैं। हम शिष्य के समान प्रभु के चरणों के पास बैठकर हम क्या है, प्रभु का वचन सुनना है। प्रभु हमको क्या कहता है, प्रभु के वचन के द्वारा हम चेतावनी लेना है। प्रभु का जब भी समय, जितना भी हो सके, जब भी हमको समय मिलता है, प्रभु के चरणों के पास बैठना है। बहुत लोग प्रभु के वचन के विषय में क्या करते हैं, लापरवाह करते हैं। प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए लापरवाह करते हैं। परंतु जितना समय हम प्रभु के चरणों के पास देते हैं, उतना वचन को सुनते हैं, उतना हमारे जीवन के लिए। इसलिए दाऊद राजा भी बोलता है, परमेश्वर ये हुआ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न। मतलब प्रभु के वचन हृदय में रहने से हम पाप से, परीक्षाओं से बच जाते हैं। क्यों बोलने से? वचन हृदय में रहने से सही समय पर वो वचन हमको याद आता है। अरे प्रभु के वचन में तो ऐसा लिखा है, मैं क्या है, पाप नहीं करना, ऐसा चोरी नहीं करना बोल के प्रभु के वचन में लिखा है ना। ऐसा व्यर्थ विचार अगर दृष्टि में कुछ आंखों के सामने आता है, ये देखना भी पाप है ना बोल के, अगर प्रभु का वचन याद है तो हम उसको क्या है, उस वचन का हम तो फायदा होता है ना। तो वचन ही याद नहीं है तो मनुष्य आसानी से क्या करता है, परीक्षा में गिर जाता है। इसलिए हम प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रभु के वचन को सुनना है। जितना हुआ उतना प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना है। मरियम भी बोलती है तो क्या है, वो प्रभु का वचन को सुनकर क्या करती थी, अपने मन में रखकर सोचती थी। लूक सुसमाचार 1 अध्याय का वर्स 19। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती। मतलब हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में, अपने मन में रखना है और उसके ऊपर हम सोच विचार करना है। सुने इतना ही नहीं, परंतु हम वो वचन सुनकर उसके ऊपर विचार करना है, उसके अनुसार हम चलना है। इसलिए मरियम क्या करती थी, मतलब प्रभु के चरणों के पास बैठकर वो क्या कर रही है, प्रभु का वचन सुन रही है। हिंदी में लिखा है वचन सुनती थी। वचन सुनती थी मतलब एक दिन का वो समय नहीं है, वो जब भी प्रभु यीशु मसीह आते हैं वहां पर वो सुनते जाते थे। इसलिए प्रभु के वचन में हम देखते हैं मरियम के बारे में कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। वो उत्तम भाग क्या है, मतलब प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रभु का प्रभु मतलब दीन, पांव के पास बैठना मतलब नम्रता, दीनता दिखाता है। नम्र दीन होकर हम प्रभु के वचन को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। और एक भाग में मरियम के बारे में हम देखते हैं, लूक सुसमाचार 11 अध्याय, सॉरी यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 11 चैप्टर वर्स 32। जब मरियम 31-32, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देख कर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझ ले कि वह कब्र पर रोने के लिए जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यहाँ पर हम देखते हैं मरियम फिर से यहाँ पर प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के पांवों के ऊपर गिर के क्या कर रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, अपने आंसुओं को बहा रही है। क्यों?
प्रभु यीशु मसीह हमेशा मरियम के घर में जाते थे और उनसे प्रेम करते थे, लाजर से भी प्रेम करते थे। और जब लाजर बीमार हो गया तो प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है वह तेरा मित्र लाजर बीमार है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जाने के लिए उस वहां पर जाने के लिए देर किए तो लाजर मर गया। लाजर मरने के बाद क्या हो गया, घर में बहुत बड़ा दुख, कष्ट, संकट, बहुत निराशा। क्यों? इकलौता एक भाई था और उससे बहुत प्रेम था और वो क्या है, और बीमार, अगर बीमार रहने से वो प्रभु यीशु मसीह जाते तो अच्छा करते थे, उनको विश्वास था। परंतु यहाँ पर देखते हैं कि मरियम प्रभु के चरणों के पास, मार्था भी गई और लिखा है 30 में 29-30 में 22 में। और अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तो यीशु से मांगेगा परमेश्वर उसे देगा। यीशु ने उसके कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उसे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मार्था गई है, प्रभु से बात करे, परंतु प्रभु के चरणों के पास वो नहीं गिरी। प्रभु के चरणों के पास वो प्रार्थना नहीं करे, प्रभु के चरणों के पास आंसू नहीं बहारे, सिर्फ बोल रहे कि प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर भी अगर तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो वह परमेश्वर तुझे देगा। परंतु मरियम के बारे में देख रहे हैं, मरियम क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर गिर के क्या कर रहे हैं, बोल रहे प्रभु जी, प्रभु जी अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर भी हम देख तो दूसरी बात हम देखते हैं कि मरियम क्या है, प्रभु के चरणों के पास गिरकर तो क्या करे, प्रभु से प्रार्थना करे, आंसुओं को बहा रहे, आंसुओं को बहाकर क्या कर रही है, प्रभु को क्या बोल रही है, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई, मतलब संकट में है मरियम, बहुत निराश है, दुखी है। ऐसे दुखों के समय में, निराशाओं के समय में मरियम क्या करे, प्रभु के पांव के पास वो क्या है, पांव को पकड़ लिया है। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, निराशा आए, बहुत कैसा भी परिस्थिति आए, हम प्रभु के चरणों के पास बैठकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों के पास बहाना। हम क्या करते हैं, व्यर्थ चिंता करके हमारे आंसुओं को इनके सामने उनके सामने अपनी परिस्थितियों को बोल के बहुत बार होते हैं। परंतु मरियम को हम देखते हैं, मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठ कर गिर कर क्या कर रही है, रो रही है, रो रही है, मतलब रो कर क्या कर रहे हैं, प्रभु से। तो आपने हमारे जीवन में सीखने का पाठ क्या है, मतलब हम भी हमारे जीवन में क्या करना है, प्रभु के पांव के पास, जहां पर प्रभु के पांव हम यहाँ पर है, जहां पर भी हम प्रभु के चरणों के पास आकर अपने आंसुओं के साथ अपने समस्याओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, हमारी प्रार्थना को प्रभु प्रार्थना को सुनता है, हमारे आंसुओं को प्रभु देखता है और हमारे आंसुओं को देखकर प्रभु क्या करता है, अद्भुत कार्य करता है। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु के पांव को उसने पकड़ लिया, उसके पांव के ऊपर गिरकर क्या कर रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है। आपने आंसुओं को बहाना मतलब प्रभु से प्रार्थना। बच्चे लोग क्या करते हैं, आंसुओं को कब बहाते हैं, जब अपनी जिद पूरा होने, हमारे आवश्यकता को पूरा करने रोकर रोकर मांगते हैं। परंतु यहाँ पर परिस्थिति क्या है, परिस्थिति रोने की परिस्थिति है, क्यों बोलने से उनका भाई मर गया है। परंतु ऐसे कठिन परिस्थिति में मरियम क्या करे, प्रभु के चरणों के पास, तो चरणों के ऊपर गिरकर, पांव के ऊपर गिरकर प्रभु से अपने आंसुओं को बहा रही है।
तो हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में, कैसा भी जीवन में दुख आए, कष्ट आए, निराशा आए, कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हम प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के पांव के पास जाकर अपने आंसुओं को बहाना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। प्रभु क्या करता है, हमारे आंसुओं को देखकर प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मार्क सुवार्ता में एक बात लिखा है, देखो ये स्त्री है, मार्क सुवार्ता 7 अध्याय में से 7 अध्याय में से पढ़ती मैं 25 से पढ़ती। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरूपिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अन्य जाति स्त्री है, अन्य जाति स्त्री है और उसके बेटी में क्या है, अशुद्ध आत्मा है। इसलिए वो प्रभु की चर्चा सुनकर, प्रभु के बारे में सुनकर, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करता है, वो सुनकर क्या कर रही है, प्रभु यीशु मसीह जब उस गांव में से जा रहे थे तो क्या है, तुरंत ये स्त्री क्या करे कि प्रभु के सुनकर प्रभु के पास आकर क्या करे, तुरंत प्रभु के पांव के ऊपर गिर, प्रभु के पांव के ऊपर गिर के क्या कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं कि मेरे बेटी में दुष्ट आत्मा निकाल। बेटी के लिए कितना तड़प रही, वो बेटी को अशुद्ध आत्मा, ये दुष्ट आत्मा उसको बहुत सता रही है और अकेले बेटी है, शायद उसके लिए बहुत निराश है, दुखित है। और हम देखते हैं एक हमारा बच्चा अगर बीमार हो गया तो हम कितना चिंता में रहते हैं, कितना चिंता में रहते हैं। परंतु ये बेटी में तो क्या है, अशुद्ध आत्मा है। तो ये क्या करे, प्रभु के पास, प्रभु के चरणों के पास में, प्रभु के चरणों के पास गिर के क्या बोल रहे हैं, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा। कितना नम्र दीन बनकर वो क्या बोल रहे, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तेरे मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। उसने अपने घर जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है, दुष्ट आत्मा। कितना नम्र दिल बनकर ये स्त्री क्या कर रही है, प्रभु से विनती कर रही है। अपने आप को प्रभु कुत्ते का उदाहरण दिया तो भी क्या है, वो हम तो कुत्ते के समान है। कुत्ते भी जो बच्चों का जो नीचे पड़े हुए चूर-चार खा के झेल सकते हैं, मतलब दीन नम्र होकर पांव के पास तो गिर के जब उसने विनती की, क्या किया प्रभु ने, उसके विनती को, उसके हृदय को उसने देखा कि कैसे वो अपने बेटी के लिए कितना तड़प रही है, कितना उसके लिए वो चिंता में है। और उसको देखकर प्रभु ने क्या किया, उससे घड़ी क्या किया, बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाला। वो का वचन बोलता है एक जगह में उसका विश्वास बहुत बड़ा है। मैं 15 में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 15 में है, 15:28 में है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उससे उसकी बेटी उसी घड़ी जम गई। कितना उसको दुष्ट आत्मा सता रहा था, वो क्या करे, उसको बहुत विनती कर रहे हैं, परंतु क्या है, उसने, प्रभु ने क्या किया, उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। कहने का मतलब आप और मैं अपने बच्चों के लिए हो, कई कठिन समस्याओं के लिए हो, कैसे जीवन में आए, हम प्रभु के चरणों के पास बैठकर क्या करना है, प्रभु के पांव के पास गिर के हम आंसुओं के साथ प्रभु से
प्रभु क्या करता है, इस प्रार्थना को जरूर प्रभु हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं होते, परंतु हमारे आंसू व्यर्थ बातों के लिए, इधर उधर व्यर्थता के लिए नहीं पीता ना, आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा बचाने के लिए, ये अपनी बेटी के लिए कितना तरस रही है। क्यों? दुष्टात्मा के वश में। आज हम देखते हैं हमारे कितने बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, जो अभी भी शैतान के वश में। शैतान उनको कैसा 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 उपयोग कर रहा है। तो हम अपने बच्चों के लिए, हमारे ही बच्चे नहीं, दूसरे बच्चे भी जो जवान है, कितने शैतान के वश में है, उनके लिए आंसुओं के साथ प्रभु के पास जाकर उनके लिए प्रभु अद्भुत काम करते हैं। मरियम भी क्या करे, अपने आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों के पास गिरी है, और प्रभु ने, हम देखते हैं उनके आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों के पास गिरना, उससे प्रार्थना करना। प्रभु ने उसके घर में क्या लेके आया? जीवन लेके। मरा हुआ लाजर क्या हो गया? जीवित हो गया। कितना बड़ा अद्भुत काम। बहुत बार हम देखते हैं कि हम ऊपर ऊपर प्रार्थना करते हैं, चरणों के पकड़ कर प्रार्थना करना, प्रभु आपको छोड़कर अभी तेरे सिवा मुझे कुछ भी क्या है सहारा नहीं। हम देखते हैं कि एलिशा के समय में, जब एलिशा ने वो क्या बोलते हैं, सुनेम स्त्री का जब बेटा मर गया, तो एलिशा बोलता है गेजी को, जाकर उस लड़के के ऊपर क्या करना है, ये छड़ी को रखना। परंतु हम देखते हैं कि वो सुनेम क्या कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे। देखेंगे प्रभु के वचन में से, सेकंड किंग 4 चैप्टर वर्स 27। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंचे और उसके पांव पकड़ने लगे। तब गेजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने उसे कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपाए रखा। तब वह कहने लगे, क्या मैंने अपने प्रभु के पुत्र को वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा दे? तो मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्री को हम देखते हैं एलिशा के पांव को पकड़ रहे हैं। एलिशा के पांव को पकड़, क्यों? उसका बेटा मर गया है, और वो क्या है, उसको एक विश्वास है कि वो एलिशा के पास जाने से उसको जीवित करता है। क्यों? एलिशा कहने से ही परमेश्वर ने उनको बेटा दिया था, और वो क्या है, अभी एलिशा के पास ही गई है, उसके पांव को पकड़ के उसे विनती कर रहे। और हम देखते हैं कि एलिशा के द्वारा प्रभु ने क्या किया, और उसका बेटा जीवित हो गया। मतलब कहने का मतलब, हमारा स्वर्गीय आज के दिन में एलिशा कौन है? हमारा स्वर्गीय प्रभु है। तो हमारे कठिन परिस्थितियों में, असहाय परिस्थितियों में हम प्रभु के चरणों के पास जाना, प्रभु से प्रार्थना करना। समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम प्रभु के चरणों के पास जाकर अपने आंसुओं को बहाना, प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु क्या करता है? अद्भुत काम करता है। प्रभु के चरणों के पास जाना मतलब अपने आप को दीन नम्र करके जब प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु क्या करते हैं, हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। ना केवल प्रार्थना के लिए जाना, परंतु आराधना करने के लिए भी प्रभु के उपकारों को स्मरण करते हुए प्रभु के पांव के पास, प्रभु के चरणों के पास जाकर हम प्रभु की आराधना करना, उसको धन्यवाद करना, प्रभु को धन्यवाद करना। हम देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, 10 कोढ़ी में से एक व्यक्ति जो अच्छा हो गया है, उसने प्रभु के किए हुए उपकारों को स्मरण करते हुए लिखा है कि वो बड़े जोर से ऊंचे स्वर से आकर प्रभु के पांव के ऊपर गिर के प्रभु की आराधना करना है। तो हमारे जीवन में हम क्या करना है? प्रभु के पांव के पास प्रभु की आराधना, आप प्रभु के किए हुए उपकारों को स्मरण करना है, प्रभु के आराधना करना, प्रभु से प्रार्थना भी करना है, प्रभु की आराधना भी करना है। हम देखते हैं कि और एक उदाहरण देखा जाए तो जब
नावल ने दाऊद के लोगों को जब ऐसे छूछे हाथ हकाल दिया तो क्या है, दाऊद राजा को बहुत गुस्सा आ गया और दाऊद राजा ने बोल दिया कि नावल के पूरा घराने को मैं अभी नाश करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये बात अबीगैल को मालूम नहीं थी और अबीगैल क्या कर रही है, वो झट से जब उसको मालूम हो गया कि नावल ने ऐसी ऐसी बात कही है तो अबीगैल क्या करे, एक बात देखेंगे फर्स्ट सैमुएल 25 चैप्टर वर्स 23-24। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सन्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। ये फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर और तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन। मतलब अबीगैल उसके पति के बातों को जो उसने दाऊद राजा के विरोध में किया है वो क्या करे, दाऊद राजा के पांव के ऊपर गिरकर क्या बोले, यह अपराध मेरे ही सिर। मतलब अपने घराने के अपराध को, अपने पति के पापों को वो क्या कर रही है, अपने ऊपर लेकर विनम्र होकर दाऊद राजा के चरणों के पास क्या बोलते हैं, यह अपराध मेरे सिर पर। मतलब हम भी अपने जीवन में क्या करना है, विनम्र होकर, प्रभु यीशु मसीह हमारा जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारे घराने के अपराधों को, पापों को प्रभु के चरणों के पास हम कबूल करना। तो प्रभु क्या करता है, हम बहुत बार हमारे जीवन से प्रभु को क्रोध दिलाने वाली बातें करते हैं, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे पतियों के द्वारा, हमारे द्वारा बहुत बार हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। परंतु हमारा कर्तव्य क्या है, मतलब प्रभु के चरणों के पास जाकर अपने अपने घराने के अपराधों को, उसने कुछ अपराध नहीं किया परंतु अपने घराने के पापों को, दानियल ने भी कुछ अपराध नहीं किया फिर भी वो अपने अपने घराने के पापों को मान लेते हैं। में भी अपने अपने घराने के पापों को, पूर्वजों के पापों को मानते हैं। मतलब हम भी अपने जीवन में क्या करना है, दीन पांव के ऊपर गिरना, मतलब विनम्र होना, प्रभु के पास प्रभु को शरण जाना है। इसलिए हम प्रभु के क्रोध को हम ठंडा कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मरियम ने क्या चुन लिया, मतलब प्रभु के चरण को चुन लिया, प्रभु के पांव को चुन लिया। कैसे, वचन सुनने के लिए और कष्ट दुख की परिस्थितियों में, निराशा में प्रभु के चरणों के पास। हम भी हमारे जीवन में कष्ट में हो, दुख में हो, निराशा में हो, प्रभु के चरणों के पास जाना है। और एक बात हम देखते हैं कि मरियम के जीवन में यूहन्ना सुसमाचार 13 चैप्टर 12 चैप्टर फर्स्ट से पढ़ते, फर्स्ट सेकंड था। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं मरियम के बारे में। मरियम क्या कर रही है, अभी भी प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के पांव के पास आकर क्या करिए, वो अपने बहुमूल्य इत्र को प्रभु के चरणों के ऊपर, बहुमूल्य इत्र को क्या किया, प्रभु के चरणों के ऊपर डाल दिया। कितना है वो, आधा सेर। इत्र बोलने से हम इतना थोड़ा सा सेर देखते हैं, कितने बहुत ही कीमती रहता है। और हम बहुत बार हम सेवकों के मुंह से भी सुने हैं कि ये इत्र जो जवान लड़कियां, जो बिना शादी की लड़कियां थी, वो अपना काम करके, कष्ट करके, वो क्या है, पैसा कमा के वो इत्र को वो बॉटल भर के रखती थी। क्यों रखती थी, मतलब भविष्य में जब उसका शादी होता था तो वो इत्र क्या करते थे, वो अपने होने वाले पति के सिर के ऊपर डालते थे। क्यों बोलने से वो
वो एक पद्धत था, मतलब आज तू ही मेरे जीवन में श्रेष्ठ है, तू ही सब कुछ है बोले जैसा। तो यहाँ पर ये मरियम भी क्या है, अपने भविष्य के लिए ये तरह रखी होगी। आधा शेर है, बाइबल में इसका लिखा है वो 5 में, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। 300 दिनार, उन दिनों में 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी थी। आज के दिनों में 1 दिन की मजदूरी स्त्रियों को कितना है, 200 रुपए, 200-250। परंतु क्या है, एक कूली करने वाले लोगों के लिए तो 300 दिनार मतलब कितना डाली हो, कितना इसका आतरते है। हम देखा जाए तो ऐसा देखा जाए तो 60,000 होता है। 300 दिनार, इतना उसने इकट्ठा किया, इतना बड़ा तेल का बॉटल तैयार करके आधा शेर प्रभु के चरणों के ऊपर। क्यों? उसने, मरियम ने अपने जीवन में जान लिया था कि प्रभु ही मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ, प्रभु ही मेरे जीवन में श्रेष्ठ है, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। वो जो आतर तेल है प्रभु के पाँव के पास, पाँव के ऊपर डाल दिया। कुछ भी हम पाँव के ऊपर गिरा तो हम क्या नहीं करते, उसको वो व्यर्थ गया सोचते हैं। क्यों? उसको फिर से वापस लेने के लिए नहीं आता। पाँव के पास जो भी गिरता है उसको हम एकदम तुच्छ समझते हैं। परंतु हम देखते हैं मरियम ने प्रभु के पाँव को अपने जीवन में श्रेष्ठ, पाँव के ऊपर वो तेल डाला। मतलब ये और क्या करे हैं, वो इत्र डालकर अपने बालों से, कितना बड़ा प्रेम, प्रभु को उसमें किस रीति से जाना। केवल प्रभु के वचन सुनने के लिए नहीं, प्रभु के वचन को सुनकर उसने हृदय को भर लिया। कष्ट दुख में प्रभु के पाँव के पास जाकर अद्भुत काम अपने कुटुंब में उसने देखा। और हम देखते हैं, और आज के दिन में देखते हैं कि मरियम क्या कर रही है, पाँव के ऊपर इत्र को डालकर पाँव अपने बालों से, हम अपने बालों की बहुत सुरक्षा करते हैं। बाल ऐसा नीचे अगर सोए तो भी सिर के नीचे कुछ ना कुछ लेते, क्यों? बाल को धूल ही नहीं लगना। बाल की बहुत सुरक्षा करते हैं। परंतु मरियम के जीवन में देखते हैं बालों को उसने क्या किया, तो उसके पाँव को खोल। बाल प्रभु ने क्यों दिया है स्त्रियों को? 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है, उसके क्या है, गौरव के लिए, उसके घनता के लिए, उनके शोभा के लिए किया। परंतु मरियम ने अपने जीवन का सब गौरव और घनता जो भी है उसकी शोभा प्रभु के चरणों के पास। क्यों बोलने से, प्रभु तू ही मेरे जीवन में सब कुछ, प्रभु भविष्य में मेरी आशा तू ही है। मतलब भविष्य की उसने चिंता नहीं करी। क्यों? प्रभु उसने अपने अनुभव से जान लिया है कि प्रभु ये सब में श्रेष्ठ प्रभु ही है। और इसलिए उसने क्या किया है, अपने उस अत्तर तेल को प्रभु के पाँव के ऊपर डाल दिया, अपने बालों से उनके पूरा उसके गौरव, उसके घनता, उसका आदर सब कुछ प्रभु के पाँव के पास डाल। तो हम भी हमारे जीवन में हमारे प्रभु को ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ जब हम जानते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम। हम देखते हैं जो अत्तर तेल उसने, इत्र का तेल वो प्रभु के पाँव के ऊपर डाल के बालों से उसने पहुंचे, तो अत्तर तेल कहाँ आया, फिर से उसके बालों में, तो उसका घर पूरा सुगंध से। मतलब जितना हम विनम्र होकर हम अपने आप को प्रभु के ऊपर प्रभु को अर्पण करते हैं, प्रभु को हमारे जीवन उंडेल देते प्रभु के लिए, तो प्रभु क्या करता है, हमको कभी भी छोड़ नहीं देते और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और सुगंध क्या, सुगंध से क्या हो गया, घर सुगंधित। यही है हमारी गवाही। जब हम प्रभु को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमारी गवाही को, हमारे जीवन को और बहुतों के लिए आशीष। कितना अच्छा सुंदर गवाही हम मरियम के देखते हैं कि मरियम ने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ प्रभु को। दाऊद भी राजा बोलता है, Psalms 73,
73 में 25 वर्ष। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ आशा बोलता है, मैं कुछ भी नहीं चाहता। स्वर्ग में भी तेरे सिवाय मुझे कोई भी नहीं है, और पृथ्वी पर भी तेरे सिवाय मुझे और कुछ नहीं। मतलब हम हमारे जीवन में जब हम इस अनुभव में आते, प्रभु को सर्वश्रेष्ठ हमारे हृदय में जब स्वीकार करते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमको कभी भी नहीं त्यागता। प्रभु ने खुद बोला है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। तो प्रभु हमारे हृदय और मन को देखता है। इसलिए हर एक परिस्थिति में हम क्या करना है, प्रभु के भविष्य के लिए, विशेष हम भविष्य के लिए बहुत, मेरा क्या होगा, मैं प्रभु को स्वीकार करने के बाद मुझे क्या होता है कि क्या नहीं की, भविष्य प्रभु के हाथ में है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, मनुष्यों के ऊपर शरण जाने से परमेश्वर को, मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने से परमेश्वर को शरण जाना। मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य छोड़ दे सकता है, परंतु हमारा प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता, नहीं कहता। इसलिए हम पूरी रीति से प्रभु के चरणों के पास जाना। प्रभु के चरण, प्रभु ही हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना। इसलिए दाऊद राजा भी बोलता है, परमेश्वर यहोवा मेरा भाग। मरियम ने उत्तम भाग को, प्रभु के चरण को अपने जीवन में चुन लिया, और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी आशीष को, बहुत बड़ी साक्षी को उसने कमाया। आज हम देखते हैं मरियम प्रभु के राज्य में, क्यों, उसने सर्वश्रेष्ठ प्रभु को अपने हृदय से उसने प्रभु को जान लिया। और एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। लूक सुसमाचार 7 चैप्टर और 37-38। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मिला। यहाँ पर एक स्त्री है, यहाँ पर एक स्त्री है, पापिनी स्त्री। मतलब अभी भी अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया, अभी भी जो अपने पापों में जीवन जी रहे, यहाँ पर उसकी गवाही है क्या है, पापिनी स्त्री। मतलब उसकी साक्षी अच्छा नहीं, नाम ही उसका पापिनी स्त्री बोलने से कितना भयंकर पापी होगी। परंतु जब उसने सुना कि उस घर में प्रभु यीशु मसीह आया है, और जाकर क्या कर रही हो, अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के पांव के ऊपर अपने आंसुओं को बहा रहे। कितना आंसू बहाए उसने, प्रभु के पांव धुल गए। कैसे आंसू बहाई होगी, क्या है, प्रभु के पांव भिगोने लगे, पांव को भीग रहे प्रभु के आंसू। हम एक बूंद, कोई तो मरा तो थोड़ा सा हम रोते हैं, परंतु पूरा पांव भिगोने लगे अपने बालों से। मतलब प्रभु ने क्या किया, उसका पश्चाताप देखा, आंसुओं के साथ उसने क्या कर रहे हैं, पश्चाताप करे, अपने पापों को कबूल कर रहे हैं, आंसुओं से वो रो रही है। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया, उसके पापों को, वो भयंकर पापी थे, क्या किया, उसके पापों को क्षमा किया उसने। ये पापी स्त्री भी क्या जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ही श्रेष्ठ। अपने पापों को लेकर प्रभु के चरणों के पास आंसुओं को बहाकर, क्या है, आंसुओं को बहाकर उनके पांव भिगोए, अपने सिर के बालों से पहुंचा, और उसके पांव बार बार चूमकर उसके ऊपर पांव को चूम गई। कितना बड़ा प्रेम। और प्रभु ने क्या किया है, प्रभु का वचन बोलता है कि इसी में 47 में, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप। मतलब हम देखते हैं कि क्या है, ये पापी स्त्री प्रभु के चरणों के पास जाकर प्रार्थना किए, आंसुओं को बहाया, पश्चाताप करे, और प्रभु ने उसके पापों को। अभी भी अगर कोई उद्धार रहित है,
अपने पापों में जीवन जी रहे हैं, कितना भी भयंकर पापी होने से भी अगर आप प्रभु के चरणों के पास कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी बैठो, एकांत में बैठो, तो वहां पर प्रभु के पांव हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु के चरण है। आप आंसुओं को बहाकर प्रभु से पश्चाताप करो, प्रभु पापों को। तो हमारे जीवन में ये कि हम क्या है उस उत्तम भाग को मरियम ने छीन लिया। क्या है प्रभु का वचन बोलता है उससे कोई भी छीना नहीं, वो कोई भी छीन नहीं सकता। वो क्या है उसमें प्रभु के चरणों को सुन, वचन सुनने के लिए प्रभु के चरणों के पास आए हैं, वचन को सुन रहे अपने हृदय में रख रहे हैं। हम भी प्रभु के वचन को सुनना, अपने हृदय में रखना, प्रभु के चरणों के पास हम समय बिताएं। दूसरी बात हम देखते हैं मरियम संकट के समय में निराशा में प्रभु के पांव के ऊपर गिरकर रो रही, और प्रभु ने, हम देखते हैं प्रभु ने अद्भुत रीति से उसके भाई को बचाया। तो हमारे जीवन में भी कैसे कष्ट, दुख, निराशाओं की परिस्थितियां, हम प्रभु के चरणों के पास जाकर आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर कष्ट, दुख, निराशाओं से प्रभु हमको छुड़ाता है। और हम प्रभु के चरणों के पास जाकर हमारे क्या है, हमारे गलती पापों को जो भी प्रभु के विरोध में है प्रभु से क्षमा मांगना है। और हम देखते हैं कि प्रभु के किए हुए उपकारों को स्मरण करते हुए भी प्रभु के चरणों के पास बैठकर हम प्रभु की आराधना। और हम लास्ट में देखते हैं कि भविष्य के लिए कोई भी चिंता नहीं करना, भविष्य हमारा प्रभु के हाथ में है। और मरियम ने ये जान करके भविष्य में प्रभु ही मेरा सब कुछ है, उसने अपने इत्र को प्रभु के चरणों के पास। तो हम भी अपने भविष्य के लिए जो हमारा सर्वश्रेष्ठ वो ही प्रभु के चरणों के पास, हमारा भविष्य ही हम प्रभु के चरणों के पास लेके आना है। प्रभु ही मेरा जीवन में सब कुछ प्रभु हुई है। जब हम प्रभु को, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु हमारे गवाही को, हमारे जीवन को प्रभु क्या करता है और प्रभावित करता है। और प्रभु हमको कभी भी नहीं छोड़ता और कभी भी नहीं करता। वचन को पढ़ के प्रार्थना करेंगे। लोग सुसमाचार 10 चैप्टर वर्स 40। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है, उसे छीना नहीं। जो भाग हमने प्रभु के चरणों के पास हमने लिया है, पाया है, उसको कोई भी निकालने के लिए नहीं, क्यों वो व्यक्तिगत संबंध है जो प्रभु के साथ है। इसलिए हम क्या करना है, पूरी रीति से हम प्रभु के चरणों के पास आकर प्रभु की ओर से ये सारी आशीष प्रार्थना। महान प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर समय के लिए। आपके अनुग्रह से हमारे जीवन में दिया, बहनों की संगति में पवित्र प्रभु जी हो रहे बहनों के साथ मुझे भी आपके चरणों के पास इकट्ठा किया है, हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद देते, कोई योग्यता न होने के बावजूद भी आपके सम्मुख खड़े होने का भाग्य दिया, हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद देती हूँ। निर्बल रीति से बोले गए वचन की आप सुधी लीजिए, दया कीजिए। प्यार पिताजी, धन्यवाद देती हूँ। मरियम ने जो उत्तम भाग को चुन लिया, पवित्र प्रभु जी आपने कहते हैं उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे कोई छीना नहीं जाएगा। धन्यवाद है कि उस उत्तम भाग को जो प्रभु यीशु से आपको, आपके चरण को पवित्र प्रभु जी उसने अपने जीवन में चुन लिया है। आपके चरणों के पास बैठना, आपके वचन को सुनना। और पवित्र प्रभु जी, और मरियम कैसे जब उसका भाई मर गया तो आंसुओं के साथ आपके चरणों के पास गिरे, आंसुओं के साथ प्रार्थना की। और पवित्र प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से उस आंसुओं को देख के आपने प्रभु जी लाजर को आपने जिलाया। धन्यवाद देती हूँ पवित्र प्रभु जी। मेरे हमारे जीवन में बहुत बार पवित्र प्रभु जी ऐसे कष्ट, निराशा में, हम व्यर्थता में आंसुओं पाते हैं, तो आपके चरणों के पास आंसुओं को बहाना प्रभु आप हमको सिखाइए, दया कीजिए। प्यार पिताजी, मरियम ने अपने भविष्य की चिंता न करते हुए जो उसका अनमोल है, जो भविष्य के लिए उसने रखा था, आपके चरणों के पास ऊपर पांव के ऊपर दिया पवित्र प्रभु यीशु, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से जान लिया कि प्रभु ही मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। प्यार पिताजी, आज भी भविष्य के लिए जो आपकी ओर पवित्र प्रभु जी संसार में पाने के पीछे लगे हुए हैं, परंतु आप ही सब में सर्वश्रेष्ठ है जानकर आपके पास से आकर भविष्य के लिए आपके ऊपर आधारित होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, दया कीजिए। बड़े वचन की आप सुनी लीजिए। पवित्र प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन है,
पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। जहाँ पर भी हम कहीं भी हो, किधर भी हो, पवित्र प्रभु यीशु, जब हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं वहां पर आपके पाँव है। इसलिए विनम्र होकर वचन के लिए हो, कष्ट दुख में हो, भविष्य के लिए हो, किसी भी परिस्थिति में आपके चरणों के पास आना प्रभु आप सिखाइए, दया कीजिए, वचन की रक्षा कीजिए। हमारे हो रहे के तमाम बहनों के लिए, आपके दास के लिए, दासी के लिए और पवित्र प्रभु जी मंडली के लिए, सबके लिए धन्यवाद देते, सबको नाम नाम आशीष दीजिए। देव सुंदर समय के लिए धन्यवाद देकर मैं अपने आप को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और स्वीकार कीजिए। आमीन।